So what is it in original song? What do you want to? कभी आपने try किया बनाने का? uh, no, मतलब I would not say like not really. Okay, so you said you have never tried making any original song. Never, मतलब कोई ऐसा Yeah, छोटा भी ऐसा कभी improvise करना या just as a maybe practice snippets base. as voice notes or something like that. But never Yeah, but never like मतलब a full full song. song ऐसे कभी नहीं try किया. ठीक Yeah. है. ठीक है. एक बार थोड़ा सा आपकी पहले strength समझते हैं क्या है. तो Okay. आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हो. तो Hmm. vocals is your strength. Hmm. और इंस्ट्रूमेंट आप कोई प्ले करते हो इंस्ट्रूमेंट? नहीं, but no, not really. ओके सो तो अगर ऐसा सीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वोकल्स ही आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है. Hmm. ओके. Oh, ऑलराइट. सो यू वांट टू मेक एन ओरिजिनल सॉन्ग. I यू do. एंड इज इट लाइक अ बकेट लिस्ट थिंग और यू मतलब एक्टिवली वांट टू मेक इट? I do actively want to make it. एंड व्हाई डू And यू it's वांट टू also a मेक इट? bucket list thing. Because I think at that's like the general progression of a vocalist in my head. ऑलराइट. ओके That कैन. eventually I want to, you know, connect with people through my own thoughts. ओके. ओके. ओके वन मोर क्वेश्चन. थोड़ा सा it's not a very direct question, but just to understand where this thought is coming from. Yeah. What is मतलब what is your aim with music? What do you want from it? Um, right now I can't clearly pinpoint. Hmm. I've done music for as long as I can remember. And So right I'm now just, your main profession is something else. yeah, it's Music something is like a else. side hustle to you. Yeah, it Okay. is. And do you want to make it your main, I mean the primary Yeah, thing? I may, yeah, eventually. But Okay. being just a vocalist, I've realized is not enough nowadays. Mm. It's just not. ओके. ओके सो जो म्यूजिक प्रोडक्शन अभी आप सीख रहे हो Hmm. वो उसके पीछे का एक इंटेंट ये भी है कि यू वांट टू एम्पावर योरसेल्फ Yeah, मोर yeah, एंड. and then that way, I if see, that's the only way to move forward nowadays because covers and ASAP, there are millions of artists making all of that every day, and they're very good, right? But original songs set you apart. That is when people know you, and that is when you really like have this liberty that okay, I'm doing this, this is my work, and then you can progress as an original artist ओके. in ओके. music. ऑलराइट. ओके अंडरस्टूड. सो you want to make music your primary thing Yeah, and you yeah, are actively working for it. yeah. I'm working for it. Okay. But it's not like a secondary passion, it's like a primary thing, but it's Yeah, just this is that the कि right now primary your passion. I primary was passion. is something. My profession is something else, हाँ. but I Understood. want to have that liberty to like switch. Okay. Got it. ठीक है. Now you said कि you want to make original songs because you want to express your original thoughts in your music. Yeah. Okay. ठीक है. ठीक है. तो this ये एक इंसान वही कह सकता है जिसको जिसको देखिए एक डिफरेंस होता है एक आर्टिस्ट और एक सिंगर में. Hmm. ओके. Okay. सिंगर सिंगिंग करता है, बहुत अच्छी सिंगिंग Hmm. करता है, वो अपने क्राफ्ट का पक्का होता है, वो Hmm. वर्सटाइल होता है और वो यू you नो उसकी मेन चीज़ होती है कि वो कितना अच्छा गा सकता है. Hmm. Hmm. आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे बेस्ट सिंगर हो या बेस्ट Hmm. म्यूजिशियन हो या उसका गाना सबसे बेस्ट हो. आर्टिस्ट somebody who does something original, something unique. Okay. Yeah, you connect with people. Like I mean, हाँ. प्रतीक कुहाड़ और अनूप जैन वो बहुत ज्यादा भयंकर सिंगर्स नहीं है, करेक्ट. but they connect with you, right? उनके यस. जो गाने हैं that they really resonate. So that यस. that that is the aim. तो your wish to make an original song is Hmm. to make something that connects with people. Yes. Okay, awesome. So it's coming from a pure intent. Okay, which is a Yeah. good thing. Which is a good thing. And why I'm saying this because lot of time when you want to make a original song, it Hmm. comes from a place that कि हमें लगता है कि ये करना ज़रूरी है या ये करने से रिकग्निशन मिलेगी या ये करने से कुछ मिलेगा. इफ़ दैट वाज योर Yeah. एम तो भी आप अच्छा ओरिजिनल बना सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बना सकते हो,
बट आप उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगे, आप वो We बनाओगे जो never आपको know लगता है। how many originals have people have failed with how many originals before they got that one original that really blew up. यस। So, if I make one original song and I feel कि अच्छा ये तो एकदम धमाकेदार हो जाएगा, एकदम blow up हो जाएगा, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है. यस You, यस। you, you can't ओके। go in with that mindset. ऑसम ऑसम, बढ़िया, अच्छी बात है ये चीज़ें, अगर आप सॉर्टेड है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप ओरिजिनल सॉन्ग इस इंटेंट Sorry. से बनाओगे कि वो चले, तो आप फुल फ्रीडम से ओरिजिनल सॉन्ग नहीं बनाओगे, मतलब आप Yeah. क्रिएटिव, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट थिंग व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग ओरिजिनल वर्सेस व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग मतलब कवर एंड ऑल। Yeah, it's like Instagram trend. जो चलेगा आपको वो बनाना पड़ेगा. यस यस। क्योंकि लॉट ऑफ ओरिजिनल, और व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग ओरिजिनल, नो, इट इज ऑल अबाउट हाउ ऑनेस्ट यू आर विथ योर क्राफ्ट। Hmm. कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप ऑनेस्ट हो इस बात को एक्सेप्ट करने में कि ये चीज़ अच्छी लग रही है या ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ओके। Hmm. ये बहुत टफ काम है, ये बहुत ज़्यादा टफ काम होता है। Yeah. ओके ठीक है। तो potentially you have the potential, because where you are coming from is the intent is pure, so you have the potential to make something new. Okay, something that you think which would be a very new thing. Okay. Hmm. All right, now the question is and the challenge is कि Hmm. intent तो हमारा pure है, but then how to do it is very, it's very dark place, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, कैसे Hmm. करें वो सब। Yeah, like ओके। there are so many things to write about, so यस many things to think about. How यस। and even one topic can like one process or whatever, one topic for a song can be इतना बड़ा. So how do you constrict yourself? Okay, this is what I'm going to say on this. Because when you write, there are thoughts, a lot of them. So how do यस you like pinpoint or just decide what you need to write? यस यस। ऑसम ऑसम। ऑलराइट ठीक है, तो मैं आपको दो टेक्निक बताता हूँ, ठीक है, Okay. जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। Okay. पहली तो कॉम्पोजिशनल टेक्निक हो जाएगी, और दूसरी होगी आपकी लिरिक्स राइटिंग की टेक्निक ना। लिरिक्स Okay. राइटिंग में मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट अच्छा नहीं हूँ इस सेंस में कि मेरी वोकैबुलरी मुझे लगता है कि हम्म. अभी उतनी अच्छी नहीं है, लिमिटेड है. हाँ, लिमिटेड है। वही वही. बट एक बात ये समझनी है हमें कि अच्छा लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी की ज़रूरत हाँ, नहीं वी होती। डोंट इवन नीड लाइक, या मैं तो गुलजार थोड़ी बन जाऊंगी मैं. एंड करेक्ट। वोकैबुलरी उतनी कॉम्प्लिकेटेड पीपल नॉट इवन माइट नॉट इवन अंडरस्टैंड, यस यस। तो यू स्पेशली हैव नाउअडेज. टू, हाँ परफेक्ट, यस यू आर करेक्ट। तो यू हैव टू राइट नॉट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, यू हैव टू राइट समथिंग ऑनेस्ट, दैट इज द मेन चैलेंज। हम्म. ओके। You या. have to write not something fancy, you have to write something that actually you think this is coming from an honest place. हम्म. Okay, क्योंकि वही या. चीज कनेक्ट करेगी लोगों से। हम्म. करेक्ट ओके करेक्ट. ठीक है। तो लिरिक्स राइटिंग पे अभी हम लोग आते हैं, मैं बताता हूँ हम्म. मेरी क्या टेक्निक होती है लिरिक्स राइटिंग को ओके. लेके। और पहले कॉम्पोजिशनल टेक्निक पे आते हैं, ठीक है। ओके. अभी कॉम्पोजिशन, अभी दो तरीके होते हैं जब कोई आप गाना बना रहे हो ओरिजिनल, तो हम्म. या तो आप पहले लिरिक्स लिखते हो और फिर कंपोज करते हो, या तो आप पहले हम्म. कंपोज करते हो और उसके ऊपर लिरिक्स लिखते हो। या. आप पहले, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको अगर करना हो तो जस्ट इन योर हेड आप इन दोनों में से कौन सा तरीका चूज करने, इन कौन सा माई पाथ हेड आई चूज वुड करोगे, डू म्यूजिक एंड देन लिरिक्स. एंड वाई सो? Because I think we have जब हम lyrics पहले लिखते हैं without any music, it sort of becomes like a poem. सॉर्ट ऑफ बिकम्स लाइक व्हाट? Poem. पोएम। ओके Poem. ओके। वो ऐसे चलता रहता है, राइट? एंड आई मीन ऑफ कोर्स इट वर्क्स फॉर सम पीपल. लोग पहले पूरा लिख लेते हैं एंड राइट। देन इवन व्हाइल कंपोजिंग दे ट्वीक देयर लिरिक्स और दे चेंज देयर लिरिक्स थोड़ा बहुत. वो करना ही पड़ेगा आई थिंक. राइट। So that is one way. Or you could build your music as you're writing. A lot of people do that also. यस यस। But in my head, I've tried writing lyrics and then putting them to music, हाँ। right? But इतना मजा नहीं आया. So I think I would try doing music alongside uh, lyrics so that I know कि अच्छा मेरे पूरे गाने की वाइब क्या है. ऑसम ऑसम, ठीक Right? है I ठीक mean, है। मैं like दर्द डिस्को लिख रहा हूँ फिर उसको डिस्को हाँ बना दी. So that is, हाँ। वो तो बिल्कुल ही अलग वाइब हो गई. We करेक्ट don't करेक्ट। want to do that.
or करेक्ट maybe you करेक्ट. do like, but it hasn't तो worked इट for me इज, so far. हाँ तो क्या है ना कि ये दोनों ही पाथ चल सकते हो आप, बट हाँ. जिस पाथ में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वही पाथ में आप चलो तो Hmm. बेटर होता है. ओके. Yeah. तो आपके लिए पहले म्यूज़िक बनाना ज़्यादा इजी चीज़ होगी, हाँ. ठीक है. और जब मैं भी बनाता हूँ तो आई ऑल्सो लाइक टू डू म्यूजिक फर्स्ट एंड देन पुट वर्ड्स ऑन इट. ओके. Yeah, or just like do it a little bit simultaneously. अच्छा थोड़ा सा बनाया. You have हाँ an idea. You know what you're going to write about. So हाँ maybe create like an outline. Okay, that हाँ. the verse is this and everything. And then you create a chunk of music and then you put it to words. Then you move ahead. यस यस यस. ओके. ऑलराइट. नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग कि now how do you make music? Hmm. Okay, now I want you to first tell me, if I ask you that you have Hmm. to make a song, how do you make the music? I will want to get clear on what kind of vibe I want my song to have. कि किस तरीके का मतलब मैं गाना बनाना चाह रही हूँ. I want it to be slow, I want it to be fast, Hmm. right? Mm-hmm. वाइब भी बनाना है, कैसा बनाना है, थोड़ा क्लासिकल टच देना है, क्या करना है. So decide Right. on the vibe. That is the first thing I would do. Hmm. Then I would maybe write like जैसे हम रफ लिरिक्स गा के रिकॉर्ड करते हैं, हाँ. वैसे just rough lyrics you write or you sing. थोड़ा सा Hmm. like ponder on it, think about it, Hmm. and do a rough recording, create some music for it, Hmm. right? And then you refine that music and then you move ahead. Okay, okay, okay. So we need to. So this is good. So it is like checkpoint one, checkpoint two, checkpoint three. Yeah, It's like this. sort of Okay. like that. So now let's zoom in on each one of the checkpoints. ठीक है. Okay. Yeah. आपने कहा कि सबसे पहले you will check what is the kind of vibe that you want to make. Yeah. Okay. ठीक है. Vibe I understood कि whether it is fast song or a slow song, what kind of melody it would have. Now Hmm. the main question is, ओके व्हेन, जैसे अगर हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि ओके द वाइब इज लेट्स से सोलफुल, Hmm. देन Yeah. हाउ डू यू क्रिएट अ सोलफुल, हाउ डू यू कम Yeah, अप like the विद अ original सोलफुल, tune. हाँ ओरिजिनल ट्यून. That is what I व्हाट would कुड बी, do. व्हाट इज योर प्रोसेस? और व्हाट, अगर अभी आपने कभी ट्राई भी नहीं किया है तो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट इज इट दैट इज कमिंग इन योर माइंड अगर आपको ये करना हो तो? Maybe sit with an instrument and just like hum melodies that you like. And हम्म. then like something will eventually stick. हम्म. हम्म. And हम्म. then you do like a rough record of that. हम्म. And then you add more elements to it. हम्म. हम्म. And then you put lyrics to it, I think. Okay, okay. So we are I mean the puzzles are being put together. अभी क्या है Hmm. कि आपने सही बताया कि जो पहली चीज दिमाग में आती है वो यही आती है कि we will just sit with it and maybe with your instrument, or you can just sit it like मतलब ऐसे भी आप बैठ सकते हो और Yeah, कुछ yeah. आप गुनगुनाओ और Yes. अलग अलग चीज़ें गुनगुनाओ उस वाइब में जो आपको लगता है सही लगे. और उसके बाद जो भी आप, जैसे अगर आपने 10 या 12 हम्स किए तो आपको जो भी लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है या ये Hmm. चीज़ अच्छा लग Hmm. रहा है, वो उतना हिस्सा आपने लिया और फिर आप उसको फिक्स करके उसके आगे एक्सपैंड करना स्टार्ट करते Yeah. हो. ओके. सो Yeah. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग. वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हेन यू आर मेकिंग म्यूजिक, okay, especially when you're composing something, I think एक illusion बहुत सारे लोग के मन में होता है कि Hmm. जब एक कॉम्पोजर कॉम्पोज कर रहा होता है तो वो कॉम्पोजिशन सुन सकता है पहले, या उसके दिमाग में वो चीज़ चल रही होती हाँ, है. राइट. और कि जैसे हाँ कोई भी इफ दे मेकिंग अ सॉन्ग, दे हम्म. नो हाउ इट इज गोइंग टू टर्न आउट, उनके दिमाग में हो ऐसा राइट. पहले लगता है. बट इट्स हम्म. वेरी तभी लगता है, दैट्स व्हेन यू सिट डाउन टू डू इट. हम्म. यू गेट स्टक कि अच्छा मेरे दिमाग में तो है ही नहीं कुछ विजन, आ लाइक. ही नहीं रहा है, मेरे में हाँ, ब्लैंकनेस फील होती है ब्लैंक हमें. है. यस. ओके. तो आई थिंक आई एंड आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, बट ओके. आई थिंक from all of the time when I was in this process, I think nobody knows anything. सभी लोग blank होते हैं. ओके. और सभी का यही तरीका होता है कि वो कुछ प्ले करते हैं या अपने मुंह से कुछ गाएंगे या कुछ इंस्ट्रूमेंट में प्ले करेंगे
और फिर जो उन्होंने प्ले किया वो सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये जो अभी Hmm. बजा है वो अच्छा है कि नहीं, येस और नो. Yeah. ओके. नाउ एज अ कॉम्पोजर आप सिर्फ इतनी ही चॉइस ले सकती हो. कॉम्पोजिशन इज नॉट अबाउट योर टेक्निक और कैसे कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी म्यूजिक की. कॉम्पोजिशन Hmm. इज अबाउट द चॉइस दैट यू मेक. ओके. Yeah. वेदर दिस इज गुड और बैड, बस इतना ही है. एक कॉम्पोजर इतना ही करता है. Hmm. आप Hmm. चाहो तो 100 म्यूजिशियन, बेस्ट म्यूजिशियन को अपने साथ रख लो और उनको अपने बताओ कि ये थॉट है मेरा, इस टाइप का मुझे म्यूजिक चाहिए. तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको सुनाएंगे ये आइडिया है, ये आइडिया है, ये आइडिया है, ये आइडिया. तो उस 10 आइडिया में Yeah. आप चूज करो कि नहीं ये वाला अच्छा लग रहा है, इस चीज पे थोड़ा सा और एक्सपैंड Hmm. करो. Hmm. एंड दिस इज Yeah. हाउ सेशन म्यूजिशियन वर्क ऑन इनसाइड अ स्टूडियो. Yeah. ओके. इवन अगर आप चाहे जितने भी बड़े ए आर रहमान या अमित त्रिवेदी या किसी कोई भी जो भी सेशन म्यूजिक करता है, यानी कि अपना कोई गाना बना रहा है, उसने किसी एक बड़े इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर को बुलाया, तो वो उन्हें Hmm. नहीं बताते कि उन्हें क्या प्ले करना है. वो बस उन्हें एक सीड देते हैं कि ये इंटेंट है इस गाने का या ये थॉट प्रोसेस Hmm. है, अब आप अपना कुछ करो. तो वो जो प्लेयर है वो कुछ बजाएगा, बिकॉज वो Yeah. प्लेयर जो है उसकी मास्टरी उस इंस्ट्रूमेंट में है, तो वो कुछ बहुत कुछ निकाल सकता है. हमारी हाँ. मास्टरी नहीं है, तो हम लोग लिमिटेड Hmm. चीजें निकाल सकते हैं. बट Hmm. चॉइस है जो होगी कि मतलब वो जिसने जो बजाया उसने 10 लाइन, तो उसमें से तीसरी वाली लाइन अच्छी है कि पांचवी वाली लाइन ज्यादा अच्छी है, Hmm. वो नहीं ले पाएगा, वो आप लोगे जो कॉम्पोजर है उस गाने का. Hmm. ओके. तो you as a composer, your job is to just take decision whether this is good or bad. Okay. And your process would be कि आप, क्योंकि your primary instrument is your vocals, so what you will Hmm. do is you will sing 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, या जितनी भी Hmm. आप जितनी भी अलग अलग वेरिएशन कर सकते हो एक मेलोडी पे, और आपको एक मेलोडी से ही शुरू करना है. ठीक है. Hmm. और उसके बाद आपको चॉइस लेना है कि इन 10 में से सबसे क्लोजेस्ट आपको क्या लगता है कौन सी थी जो फील पकड़ पा रही है, Hmm. और फिर उसमें आपको उस लाइन को एक्सपैंड करना है. तो इस प्रॉब्लम बस इसमें एक छोटी सी ये है कि यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन. Yeah. Okay, that is where I feel like good composition comes from. If you treat Hmm. yourself as a first person, तो फिर आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे. हाँ. ओके. और थोड़ा सा इसको मैं इसका क्या बोलते हैं और प्रैक्टिकल साइड आपको बताता हूँ कि अब ये चीज़ Hmm. प्रैक्टिस और कैसे कर सकते हैं. तो एक तरीका होता है, अगर आप ब्लैंकनेस में बैठोगे, Hmm. ओके, तो आप ब्लैंक ही रहोगे. Yeah. Correct. आपने Correct. पता नहीं कभी नोटिस किया है कि नहीं, बट your identity or what you are changes with whatever you interact with. Yeah. Okay. Correct. Correct. मतलब कि मैं एज अ पर्सन अलग हूँ जब मैं आपसे बात करता हूँ, मतलब एक साइड मेरा अलग है वर्सेस जब मैं Yeah. अपने फ्रेंड से बात करूंगा या जब मैं अपनी मम्मी से बात करूंगा. तो Hmm. मेरी कोर पर्सनालिटी सेम है, बट एक साइड मेरा जो एक रिफ्लेक्शन मेरी चेंज हो जाती है. Hmm. ओके. Correct. और वो इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि इसलिए नहीं कि मतलब मैं अलग रहता हूँ सबके साथ, बट इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि आप जिस भी चीज के साथ इंटरेक्ट करोगे यू Hmm. विल स्लाइटली अडेप्ट टू द सेटिंग. Correct. Correct. ओके. ठीक है. तो इफ दिस इज ट्रू देन यू शुड नेवर कंपोज समथिंग फ्रॉम ब्लैंकनेस, बिकॉज ब्लैंकनेस के साथ अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो आप ब्लैंक ही रहोगे. आई मीन 0 मल्टीप्लाई बाई Yeah. 100 हमेशा 0 ही रहेगा. You know, yeah. Correct. ओके. एंड इस वजह से आप ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर मैं आपको सिर्फ एक पेज दे दूं, ब्लैंक पेज दे दूं और पेंसिल दे दूं और आपसे कह दूं कि आप ड्रॉ करो, तो Hmm. आप लॉस्ट हो जाओगे. आपके पास लिटरली कुछ नहीं समझ आएगा कि मैं ड्रॉ तो करूं पर क्या करूं, क्या ड्रॉ करूं. Correct. राइट. तो इन योर हेड यू विल इंटरैक्ट विद सम थॉट्स, और फिर जो थॉट आपको इंट्रीग करेगा उसको आप ड्रॉ कर दोगे. Hmm. तो आपको इंटरैक्ट करना ही पड़ेगा. बट अगर मैं आपको एक ब्लैंक पेपर दे दूं और एक बहुत सुंदर सी लोकेशन पे आप हो और मैं आपसे बोलूं ड्रॉ करो, तो Hmm. इवेंचुअली यू आर इंटरैक्टिंग विद दैट लोकेशन, सो यू विल ड्रॉ समथिंग फ्रॉम दैट लोकेशन. Yeah. Okay, so this is how we work. We work in interaction. So you have, when you are making songs, you have to interact with something. Okay, and what is it? So what I do is
अगर मुझे फील समझ में आ गया गाने का, जैसे कि लेट्स से सोलफुल गाना है या फिर डांस गाना है या जो भी है, तो हम्म उससे रिलेटेड, उस वाइब से रिलेटेड मैं एक कोई बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर दूंगा। हम्म ओके, और आपको या इंटरनेट में बहुत मिल जाएगी, आप बस लिख दीजिए इमोशनल सोलफुल पियानो 1 आवर, और 1 घंटे का हम्म एक वीडियो लगेगा जिसमें कुछ भी पियानो बज हम्म रहा है, बस वो वाइब वो वाली क्रिएट कर रहा है। ओके, अब आप उसे बजा दो, और अब आप जब मेलोडी बनाना शुरू करोगे ना, तो यू विल बी इन दैट जोन मोर, आप क्योंकि ऑटोमेटिकली आप इंटरैक्ट कर रहे हो उस म्यूजिक के साथ, तो मे बी हम्म वॉट यू विल डू इज यू विल ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑन टॉप ऑफ दैट बैकग्राउंड म्यूजिक, एंड वहां से वो मेलोडी जो बन के आएगी वो ज्यादा हम्म क्लोज होगी उस फीलिंग के बजाय, अगर आप ब्लैंकनेस से कुछ निकालने की कोशिश करोगे। करेक्ट करेक्ट ओके, मेक सेंस? या Okay, so this would be one practice when you are making, when you're composing. या Okay, now let's come to writing. हम्म So I want you to tell me, if you have to write about something, how would you write? What is your अगर आपने कभी लिखा नहीं है तो बस आप उसके बारे में सोचिए और मुझे बताइए कि आप क्या सोच हम्म रहे हो। that how I would start writing. Um, yeah, this is where I get stuck So for because example, if you want to write a song um about, you tell me कोई भी let एक। let's take a very simple example. Let's write a song about an orange. It's just an example, Okay, so right? let's, okay, if you have to, It's just like an exercise. I'm not going to write a song about an orange. yes. So I would suggest कि let's take Or a maybe better an example. Yeah. experience from your a certain point of time in your life. Okay. That is relatable. Maybe about your school time, or maybe about friends. You want to write about friends. Okay. Just for example's sake. Okay. Okay. ठीक है, ठीक है. Awesome. Awesome. तो let's say, okay, if you, okay, ठीक है, हाँ, अब आप बताइए. If you want to Hmm. write a song about friends, अभी आप सोचिए, आप लिखोगे तो आप सोचिए इस बारे, तो आप सोचिए कि आप Hmm. क्या सोच रहे हो, कि जब आपका दिमाग क्या सोच रहा है कि वो कैसे इस चीज को एग्जीक्यूट करे, और जो भी आप सोच रहे हैं आप उसे बस मुझे बताइए। Okay, so if I'm writing, for example, about friends, then uh, maybe friends in different cities, हम्म or then how have things changed, हम्म and what was it like before, and how would you want it to be? तो ये हम्म सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं. Or हम्म maybe a friend who is leaving and going to a different city, हम्म 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 right? हम्म So then what are your fears with that? And हम्म how would you want your friendship to stay? Or, uh, ऐसा सब कुछ, like you think about that topic कि क्या क्या हम्म, हो सकता है, एंड right? यू डिस्क्राइब व्हाट इज, मतलब कैसा उसमें फीलिंग आ रही है। हाँ, how would you feel? And पहले कैसा फील हो रहा था? Now, are you afraid? Are you wishing them well? राइट करना क्या चाह रहे हो, right? और कहना क्या चाह रहे हो? So it's like a राइट message. राइट राइट, ऑसम ऑसम। Hmm. ओके, सो देखो, इस चीज से हमें दो चीज हमें समझनी है। पहली चीज तो हमें समझनी है कि हमें ये तो पता है कि क्या हमें बताना है, Hmm. Hmm. ठीक है, उस गाने से, ठीक है। तो ये इसमें हमें क्लैरिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेंडशिप के बारे लिख रहे हो, तो आप बताओगे कि कैसे फ्रेंडशिप फील होती थी जब हम लोग साथ थे, बट अब सब लोग अलग हो Or चुके maybe, हैं। or maybe you're writing about like fleeting connections. You meet a person and हम्म you meet them for a very short time, हम्म right? And that's not enough. And now हम्म she's leaving. हम्म And you feel हम्म like, okay, that's not enough. I could have had more time with her, हम्म हम्म right? हम्म, And like, how would things change with that? राइट, हम्म So that is something that I can write about. okay, okay. So this, what you described, this, so this is the feeling, okay, and this Yeah. is what you want to express in with the song. Hmm. Okay, Yes. all right, awesome. So with the feeling you are, I mean, you are clear about it, which is Yeah. like step one tick. Okay, Okay. because the step one when you are writing a song is to be very clear कि क्या है जो आप, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हो। Hmm. ओके, ऑलराइट। तो मैसेज तो हमारा क्लियर है कि हमें क्या एक्सप्रेस करना है, उसमें हमें क्लैरिटी Hmm. है। Yeah.
ऑलराइट, अभी कैसे देना है दैट इज द क्वेश्चन. ओके, हाँ. ठीक है. तो ओके, तो आप इसको इस तरीके से सोचिए कि जो चीज़ हमें इंट्रीग करती है हम्म. वो कोई भी चीज़, खास तौर से अगर वो वर्ड के फॉर्म में हो, हम्म. ओके, स्पोकन वर्ड या रिटन वर्ड के फॉर्म में हो, हम्म. वो कोई भी चीज़ हमें इंट्रीग नहीं करती जो बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म में हमें हाँ. समझाई जाती है. या. ओके, यानी कि अगर आप मुझे मिस, अब सॉरी, अगर आप अपनी फ्रेंड को मिस कर रहे हो, तो आप अगर डायरेक्ट बोल दोगे कि आप मिस कर रहे हो, तो फिर बात तो कन्वे हो गई, बट हाँ. वो वो नहीं कन्वे फिर कर रहा है गाना कि क्या रहा? आप फील क्या कर रहे हो. हाँ. ठीक है, आप मिस कर रहे हो, इट्स अ वेरी डायरेक्ट स्टेटमेंट. या. ओके, बट आप क्या फील कर रहे हो, वो जो मिस वाली जो फीलिंग है, वो फीलिंग बस हम्म. एक वर्ड नहीं है ना, तो उसमें हम्म. और डेप्थ है. तो वो आप मिस कर रहे हो, ये बात में क्लैरिटी तो आ गई, बट फिर भी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पाई. तो डायरेक्टली आप कोई भी या. चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ओके, और या. दूसरी चीज़, अगर आप देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है ना कि हम लोग डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं. ओके, और हम्म. हम लोग इनडायरेक्टली ही बात करते हैं, और ये हम्म. सब करते हैं. किसी के पास कोई नहीं करता है डायरेक्टली बात, कोई कर ही नहीं सकता है. हम्म. तो अगर आप कोई डायरेक्ट फॉर्म में कोई भी चीज़ देखोगे या पढ़ोगे, या कोई भी लिरिक्स जो बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म में है, वो हम्म. उतना इंट्रीग नहीं करेगी. बट जो भी चीज़ इनडायरेक्ट फॉर्म में है, जहाँ पे हम्म. स्पून फीडिंग नहीं हो रही है कि आपको क्या आपको फील करना चाहिए, या. करेक्ट. ओके, वही चीज़ आप फील कर सकते हो. एटलीस्ट अगर नहीं भी कर सकते हो तो उसमें पोटेंशियल है कि शायद आप फील कर सकते हो. Yeah, the very similar song to this is Alag Asman by यस, Anuj Jain. Yeah, it's यस, he's never said कि okay I miss you. परफेक्ट, Never. यस. वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल. पूरे सॉन्ग में ही नेवर So एक्सप्रेसेस की. he's using हाँ, things कि okay अब यस, ये नहीं है, like जमीन अलग है, so ये है. So he's never saying कि now you're in a different city. यस, He's यस, never used करेक्ट, that word. करेक्ट, करेक्ट. ओके, ऑलराइट. सो दिस, अभी ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमें किस Hmm. फॉर्म में अपनी स्पीच को रखना है. Yeah. ओके, ठीक है. अभी इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि ये चीज Hmm. कैसे हम लोग कर सकते हैं. um, तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप किसी चीज के बारे लिख रहे हो, तो Hmm. आप ये मत लिखो कि क्या फील कर रहे हो आप, Hmm. और आपको फिर से वही थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में जाना Hmm. पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिवली आप जो हो रहा है उसको डिस्क्राइब करो. तो Hmm. इट्स अ वेरी पॉपुलर मतलब स्टाइल ऑफ सॉन्ग राइटिंग कि सी व्हेन यू आर मिसिंग योर फ्रेंड और योर फ्रेंड इज लीविंग, Hmm. लेट्स से आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिले और अब आप जा रहे हो, तो आप ये अगर बताओगे गाने में कि अब वो जा रही है और फिर से मुझे उसकी याद आएगी और मैं बहुत अब मिस कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि हम लोग Hmm. कितना कम Hmm. समय के लिए मिले, तो इट्स ओके. बट अगर आप ये बताओगे कि वो जो सिचुएशन जो आपके मन में अभी जब ये बात हुई, तो एक इमेज जो आई होगी, अगर आप सिर्फ उस इमेज को डिस्क्राइब करो कि हम लोग यहाँ पे खड़े Hmm. हैं और Yeah. हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, वो वाली जो हम लोग पहले भी पीते थे. Hmm. तो नाउ Hmm. यू आर डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, बट इनडायरेक्टली आई एम गेटिंग द फीलिंग दैट इफ यू आर नोटिसिंग ऑल ऑफ दिस थिंग, दैट मीन्स, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, यू आर Hmm. एक्सेप्टिंग कि अब ये चीज़ें जाने वाली है, दैट इज वाई योर फोकस इज देयर राइट नाउ. Yeah. Correct. 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 राइट, सो दिस इज अ गुड वे ऑफ सॉन्ग राइटिंग कि ऑब्जेक्टिवली आप सिचुएशन को डिस्क्राइब करो, Yeah. फीलिंग को कभी मत डिस्क्राइब करो. Yeah. Okay. ओके, Hmm. अभी एक इसका और प्रैक्टिकल साइड ये है कि आप दो तरीके होते हैं इसको इसको अप्रोच करने के. पहली चीज़ तो होती है कि आपका जो भी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, आप Hmm. सीधा उससे कोई चीज़ उठा के उसे डिस्क्राइब कर दो. Hmm. या फिर आप, एक तरीका होता है कि आप फिक्शनल फिक्शनल सिचुएशन भी Hmm. बना सकते हो. ठीक है, तो हम लोग Okay. मतलब जल्दी जल्दी दोनों को देख लेते हैं एक बार Okay. कि मतलब उसका प्रैक्टिकल क्या तरीका होगा अगर आप कोई चीज़ करना है. तो फॉर एग्जांपल, अभी पहले एक पास्ट सिचुएशन को लेके समझ लेते हैं. तो जिस भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, सबसे पहले आप उस पास्ट एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में रखो, और आप एक पेज लो, एक पेपर लो,
और Hmm. उसमें आप गाना मत लिखो पहले, आप सिंपली फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव जस्ट डिस्क्राइब द होल सिचुएशन इन वन पेज. ओके, इन जस्ट वन पेज और टू पेज आप उस पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब Okay. कर दो. और जब आप डिस्क्राइब कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब आप उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हो, पहली चीज. Hmm. और Yeah. दूसरी चीज, जब आपके पास करीब 500 वर्ड होंगे तो Hmm. आप उन वर्ड्स को चूज कर सकते हो अपने राइटिंग में अब. Yeah. ओके, तो अब हमें बस इतना ही करना है कि जब आपने पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर दी तो आपको बस कुछ सर्टेन पोर्शंस हैं जो हाईलाइट करने हैं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए अपने गाने में, ये चीज़ होनी चाहिए अपने गाने में. क्योंकि उसमें से 500 लाइन का तो गाना नहीं होगा, हमारा गाना तो Yeah. मान लीजिए 12-15 ही लाइन का होगा. Hmm. तो अब हमें उसको बस आपको कंप्रेस करना है उस चीज़ों को. तो एक Hmm. पैराग्राफ को आप, जो भी आपने मान लीजिए ये लगा कि अब ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, अब आप उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए. ओके, तो Hmm. कंप्रेस्ड फॉर्म में जब आप लिखने की कोशिश करोगे तो आप ट्राई करोगे एक पूरी लाइन जो थी उसको एक, क्या एक वर्ड में दे सकती हूँ इस Hmm. वाली लाइन को. एंड हाँ. दैट इज वेयर यू विल गेट वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हो अपने गानों को लेके. Hmm. आप चाहो तो इसमें इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हो Hmm. कि आप चैट जीपीटी का आप सहारा ले सकते हो कि आप उस वाली Okay. पोर्शन को आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और आप उससे बोल दो कि इफ दिस इज द मीनिंग देन गिव मी 50 हिंदी और Words उर्दू related. वर्ड्स हाँ. हाँ. रिलेटेड टू दिस. तो वो आपको वर्ड्स Hmm. दे देगा और उसको आप यूज करके अपने उसमें फ्रेमिंग में Hmm. रख सकते हो. ठीक है. Right. Correct. ओके, और उसके बाद बस आपको यही करना होगा कि उन्हीं जो भी आपने कन्वर्ट किया, कॉम्प्रेस किया, उसी को रीअरेंज करना होगा इन एन Hmm. ऑर्डर विच मेक्स rhythmic and poetic sense. Yeah. Okay, so you have to start by, I mean, collecting lot of things and then throwing out which is not important. Eventually, what जो भी आपके पास बच जाएगा उसको ही अरेंज करके गाना बन जाएगा. बट अगर आप सीधा ऐसे स्टार्ट करोगे कि ये लाइन होगी मेरे गाने की, तो Ah, वहां that is तक very difficult. बहुत And टफ you है पहुंचना. never and you never really like the line यस, that comes to your head. yes, yes, yes. Okay, so this is a more practical way of doing it. Hmm. Okay, now this is when you are doing a song from your past life or past Hmm. experience. Hmm. Okay, now you can also write songs on fictional things. Okay. Okay, now fictional thing को write करने का मैं आपको एक वो बताता हूँ. एक प्रैक्टिस होती है, Okay. ओके. और ये Okay. आप प्रैक्टिस अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, स्पेशली आप अपने जो Okay. आपके म्यूजिशियन फ्रेंड है ना उनके साथ आप लोग ये Hmm. कर सकते हो. आप लोग साथ Okay. में ये प्रैक्टिस करके एक गाना बनाने का आप ट्राई कर सकते हो. ओके, Okay. तो एक छोटा सा गेम है, उसको हम लोग साथ में खेलते हैं. उससे हम लोग Hmm. एक फिक्शनल स्टोरी बनाएंगे और फिर Okay. उस स्टोरी को उस पे हम लोग गाना बना सकते हैं. कैसे Okay. बनाना है देखिए. एक इनपुट आप दोगे, एक इनपुट मैं दूंगा. ओके, Okay. और उसके बाद धीरे धीरे वो एक एक स्टोरी हमें बिल्ड होने लग जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक इनपुट दो. इनफैक्ट यू नो Hmm. व्हाट, इन दिस थिंग मैं चाहता हूँ कि आप ही मुझे इनपुट दो, बस मैं नहीं दूंगा, आप ही दो. An आ, input as in like हाँ, तो सबसे पहले आप how? ऐसे समझो कि एक हमारा जो सिचुएशन है उसका एक मेन कैरेक्टर है. What I want you to Okay. tell me is if this main character is our main character is male or female. Female. Yeah, Or okay, male. Male भी हो सकता है. नहीं नहीं, ये Female. चीज Let's आपको keep it चूज करना female. है. Okay, Female. 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 Let's keep it female. female. Okay, Easy. Easy to all say. right. Okay, so the next question you can ask, for example, if you're a group of three, then the next question can be answered by somebody else, and then next question by somebody else, and then comes back to you. It's like this. Okay, but Okay. for now you only do it. Now you So, tell me. yeah. So the question is, main character is female. The next question is, what is the age of this female protagonist? Let's let's make her older. So let's put her somewhere in 30s. Somewhere in 30s. Okay, so Yeah. early 30s or late 30s? Mid 30s. Mid 30s for 34, 35. 34, 35. Awesome, perfect. ठीक है.
Now I want you to tell me कि this 34-year-old female is currently in what geographical situation or area? कहाँ पे है वो physically इस समय कहाँ present Maybe a metro city. है? Metro city. Can you be more specific? Like metro city में कहाँ? Let's see, let's see. Let's put her in Delhi. It's easier for me to imagine. Or if Okay. we're doing fictional, like we can put her anywhere, right? Anywhere, yes. Abhi try kar yourself, just put her in the place I know. Delhi, let's put her in Delhi only. Okay, Delhi. Delhi में कहाँ? Hmm. Like exact geographical location? हाँ, yes. Maybe somewhere in Old Delhi, because that's like historic. Okay, somewhere in old Delhi. And okay, so the next question is, what is she doing there? Hmm. Okay. And now I see where you're getting. Hmm. Maybe she's visiting. She is visiting. Okay, she's Hmm. visiting. The next Yeah. question is कि किसको visit कर रही है? Uh, Maybe she just thought of reconnecting with her family Okay, after a very long time. after a very long time, she thought of Hmm. reconnecting with her family. Is it a daytime or a night time? Okay. Or what time basically? So we need day night you. It's early morning. It's early morning. Okay, Hmm. तो मतलब 6 o'clock, 7 o'clock. Yeah. Okay, ठीक है. Now 34-year-old female 6 बजे सुबह ओल्ड दिल्ली में अपने फैमिली से विजिट करने जा रही है. व्हाट कुड बी द Yeah. रीजन? ऐसा क्यों? Hmm. Maybe, let me think. Maybe the life she was living before that is not helping her anymore, Hmm. and she decided she just really needs to come back home Okay, so and meet her family. she is very, let's say, in a chaotic situation, Yeah. and her family is like a comfort. Hmm. मतलब नॉर्मेंसी है वहाँ पे, तो इस वजह से Hmm. वो वहाँ पे वो जा रही है, तो टू फील Hmm. लिटिल लेस chaotic इन लाइफ. Yeah. ओके, Yeah. ठीक है. सो नाउ see the situation that we build is a very completely new situation, and see right now this all all of the input were coming from तो जब आप Yeah. 3 या 4 लोग साथ बैठोगे तो So it'll be very diverse input. yes, in fact I remember 2021 में आई यूज टू टीच पियानो ऑनलाइन, एंड उसमें कॉम्पोजिशन का एक क्लास था, तो वहाँ पे हम लोग यही एक्सरसाइज कर रहे थे. Hmm. और उस क्लास में एक स्टूडेंट थी, वो शी वाज 11 year old, एंड देन 2 of them वर लाइक इन देयर अर्ली 20s. Okay. तो द 11-year-old मेड दिस सिचुएशन, आई मीन completely यूनिक. मतलब उसने बताया कि मतलब एक फीमेल है जो 95 ईयर, दिस वाज द सिचुएशन दैट इवेंचुअली वी केम अप विद. अ 95 Okay. year old female is standing Mm-hmm. in Goa beach, Hmm. and she is sad but happy at the same time. अब ये Hmm. सिचुएशन आ गई, तो इट्स मतलब ऐसी Yeah, सिचुएशन. it's a very, very unique Yeah, situation. very unique. Okay, now we have by the way, so we will do your situation, what you have built. Okay. So this situation that you have now, we can we describe 4 or 5 emotions that might be going through inside her? जो भी हमने अभी फिक्शनल Hmm. कैरेक्टर बनाया है, तो एक कुछ 3 या 4 मुझे इमोशंस आप बताइए जो वो फील करी होगी. Um, Regret for not coming back earlier. ओके, रिग्रेट, वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन. ओके, रिग्रेट. Yeah. Uh, then hope. होप. ओके, ओके, नाइस. Um, जस्ट 2 more. yeah, I'm just been thinking about it. What can happen? Maybe she Comfort comfort. Yes, very nice, very nice. Comfort. Just one more. and curiosity. And curiosity. Okay, awesome, awesome. So we have 4 emotions. एक है regret, which is a negative emotion. Yeah. Then we have comfort, curiosity, and hope, which are Yeah. positive. Okay, Yeah. okay. Which tells you
कि I mean what could be the trajectory of her in the next some time. तो because the balance of situation is more towards positive, so we Positive. can expect, she is Hmm. reflecting back on her Yeah. life. That is why she feels regret, but she now wants to make it better. So Hmm. we want to write a song. If we want to write a song about her, the song should express द रिग्रेट दैट शी इज़ फीलिंग, वो कि जो कि होगा कि मतलब कि वैल्यूबल टाइम चला गया और मैंने जो Hmm. चीज़ इंपॉर्टेंट थी उसके Hmm. साथ बिताया नहीं समय, ये सब. Hmm. ओके, बट शी इज़ होपफुल. तो वी नाउ अंडरस्टैंड कि आई मीन यू अंडरस्टूड, यू कैन Hmm. सेंस Yeah. द Yeah. वाइब ऑफ द सॉन्ग, राइट? Yeah. Yeah. ओके, I can. ऑसम. नाउ द थिंग इज, अब आप इस पे सेम प्रैक्टिस अप्लाई कर सकते हो. यानी कि आप पहले सिचुएशन को एक पेज में लिख लो, उसके Hmm. बाद फिर कंप्रेस करो एंड देन मेक अ सॉन्ग. एंड दिस इज हाउ यू मेक अ कम्प्लीटली सॉन्ग Hmm. विच इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी, विच मतलब आपके हो सकता है लाइफ एक्सपीरियंस में भी ना हो वो चीज़, बट फिर भी आप उसके बारे में लिख Hmm. सकते हो. Yeah. ओके. This is a good exercise. सो दीज आर दी, आई मीन सम एक्सरसाइज. अभी ये है कि जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर इतना इतना इजी नहीं होगा जितना ये सुनने में लगता है. No, of course it won't be easy हाँ. because you're हाँ. writing and then you might यस. have to write a couple of times because you यस. just might feel कि अच्छा ये expressive. It's not expressive enough. यस. करेक्ट. करेक्ट. You do end up repeating things a lot. यस. 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 बट द थिंग इज कि ये अगर आपको ये पता हो ना, तो हमें पता होता है एटलीस्ट कि हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है. या जब भी आप Hmm. किसी पॉइंट पे स्टक होगे ना, तो आप इस पूरे काइंड ऑफ अ रूल बुक को देख के समझ सकते हो कि अच्छा अगर मैं यहाँ पे स्टक हूँ तो अभी मैं इस पॉइंट Hmm. पे हूँ, तो मुझे नेक्स्ट चेक पॉइंट के लिए क्या करना हो चाहिए. Hmm. तो Yeah. दिस हेल्प्स. This is nice. This is a good exercise. I can try it with a couple of people. या. या. ऑलराइट, सो दिस Or वुड बी. maybe we हाँ. can give them a situation that we want, like if I'm writing a song about fleeting connections, यस. right? I can give them this, I can start a point and I can give them, okay, this is the situation, and now how they actually mold it. Like how do they view that topic? यस. Can यस. 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 बिकॉज आपको वैसे फिर अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे. because everyone will feel differently about that topic. Some might be यस. really optimistic, some might be यस. really negative about it. यस. You never know how a person views it. करेक्ट. करेक्ट. यस. Yeah, and that also gives a better chance to your lyrics to be relatable to more like a wider यस. group of people. यस. करेक्ट. दैट इज ट्रू. Mhm. ऑल्सो पता है, अगर आप मतलब मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं अपना कभी कुछ बनाता था, तो मुझे लगता था कि यार जो मैं बनाता हूँ वो मुझे, जब मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता. और हाँ. उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह देखे कुछ आर्टिस्ट जिनको मैं फॉलो करता था, और मैंने देखा कि कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि जो मैं बनाता हूँ वो मैं नहीं सुनता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता, ये सब. तो मुझे लगा हम्म. काफ़ी नॉर्मल चीज़ होती होगी ये. बट अभी मैं दूसरा, मुझे लगता है कि ये दिस इज़ नॉट एंटायर ट्रूथ. मुझे लगता Yeah, I है. mean, you should have like a little bit of, you should feel good about it. Only then can you actually करेक्ट. put it out there. यस. 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 अगर मुझे एंड बिल्कुल ही trash लग रहा है, I would करेक्ट. not have the confidence to put it out. करेक्ट. 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 ओके, तो इट शुड बी, इफ इट इज इट टाइमलेस और नॉट विल डिपेंड कि आप 10 साल या 12 साल बाद भी वो गाना सुन रहे हो, तो अगर वो ऑनेस्टी से लिखा गया होगा ना, तो इट विल स्टिल मेक यू फील Yeah, द वे there are यू वर so many फीलिंग. old songs that we यस. still listen and still relatable even to a 17-year-old. यस. यस. ट्रू. But अभी like 5 साल पहले कोई गाना सुना था and that's not relatable anymore. यस. यस. Yeah, ओके, तो you just have to be truthful. Relatability is the consequence of truthful. yeah, Okay. correct. All right.